جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید پی ڈی ایم جو ہے وہ وائنڈ اپ کی طرف جا رہی ہے. وائنڈ اپ سے پہلے آپ سمجھتے ہیں جو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ کر پائیں گے؟ یہ تو بہت قبل از وقت ہے کہنا کہ پی ڈی ایم بالکل ختم ہو گئی ہے یا آج اس کا ڈیزالو کا وہ کر دیں گے. ابھی تک جو ساری سائڈز ہیں وہ اس بات پہ متفق ہے اور بار بار کہہ رہی ہے کہ جی پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور پی ڈی ایم متحد ہے. مریم کی طرف سے، بلاول کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹس بار بار آ رہی ہے. اور جبکہ مولانا مریم صاحبہ کا بھی ٹویٹ ہے کہ جب وہ کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اجلاس میں کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی نہیں کہیں اور سے پتہ چل رہا ہے. نہیں دیکھیں، انہوں نے یہ کہا کہ بلاول نے جو کہا ہے کہ جی ہم پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ فیصلے رکھیں گے، یہ بہت پازیٹیو ہے. اگر ہم ایک لائن کو پڑھیں گے تو وہ دیکھیں لیکس ہو رہی تھی باتیں کہ جی پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ ابھی جب تک نواز شریف نہیں آئیں گے تو ہم ریزگنیشن نہیں دیں گے. اب اجلاس میں اگر یہ کوئی ایک سجیسشن آتی ہے کسی کی طرف سے اور وہ فوراً لیک ہو جاتی ہے، اور آج کل میڈیا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی وکٹ پہ نہیں کھیلے گی، لیکن میڈیا میں کچھ لوگ ہیں جنہیں وہ بلاول جو ہے نا جمہوریت پسند وہ صحافی کہتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ نون لیگ کی بی ٹیم بن کے چلے اور کھیلے. ان کا خیال تھا کہ سی ای سی میں آج وہ ریزائن کر کے اٹھیں گے کہ لو جی ہم تو اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں. ان کا بڑا ایک ریشنل فیصلہ ہے کہ جی ہم سینٹ کا الیکشن جو ہے نا اس کو بھی لڑیں گے. اور وہ فیصلہ سر کنسنسس کے ساتھ ہے. اب یک طرفہ کون سے ایسے فیصلے ہیں جس پر پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں اعتراض کر رہی ہیں؟ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا وہ تو یہی جو میڈیا ہی ان کو فلیش کر رہا ہے. اور آج ابھی پی ڈی ایم کے اجلاس کی جو اس کا ابھی وہ اعلامیہ سامنے نہیں آیا، اس میں یہی ہوگا کہ ہم حکومت پہ پریشر رکھیں گے اور لانگ مارچ کی کوئی تاریخ دی جائے گی کہ جی مارچ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ لانگ مارچ کرنا ہے. اور جہاں تک وہ ریزگنیشن کا ہے کہ وہ جیسے باسط صاحب نے کہا کہ اس پہ یہی سٹیٹمنٹ آئے گی کہ جی اس کا ہم مناسب اس پہ فورم پہ مناسب ٹائم پہ نہ اس کا استعمال کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے ادھر سندھ میں بائی الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. ادھر پنجاب میں ڈسکا میں ایک وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے MA 75 پہ. کل ہی وہ پی ایم ایل این کے سارے لیڈرز جناب وہ بڑا جلوس اور جتھا بنا کے گئے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کا نامینیشن پیپر. جب ایک طرف وہ ریزگنیشن کی ان کو بڑی وہ ہو رہی ہے کہ جی ہم ریزائن کریں اسمبلی سے، دوسری طرف وہ جو الیکٹورل پالیٹکس کی اپنی ریئلٹیز ہیں ان کو بھی وہ جو لوکل ان کے پارٹی کینڈیڈیٹس ہیں یا جو لیڈرز ہیں وہ ان کو لیڈرشپ کو سمجھاتے رہتے ہیں. تو اگر پی ایم ایل این ریزگنیشن پہ اتنی سیریس ہے تو وہ ادھر سے آغاز کر دے چلے بھی ریزائن تو کرنا ہی ہے تو اب ہم یہ سیٹ احتجاجاً اس پہ ہم الیکشن نہیں. پی ایم ایل این کے جو اپنے بندوں کے استعفے پہنچ گئے تھے اسمبلی چاہے غلطی سے پہنچ گئے تھے وہ تو فوراً واپس انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں بھیجے، یہ تو غلطی سے آپ تک آ گئے. نہیں وہ تو غلطی سے ہے اور وہ ایک تو ریزگنیشن کا کوئی امپیکٹ نہ پڑتا. ریزگنیشن کا امپیکٹ تو تبھی پڑے گا. نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ دو لوگ ایگری نہیں تھے، نہیں استعفے دینے پہ نہیں تھے اور نہ ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ یہ تو نہیں کہ آپ ان کو وہ انسٹیگیٹ کر کے ان سے ریزائن کروا دیں. وہ بھی ایسی سیٹس پہ مانسہرہ میں وہ کیپٹن صفدر کے بھائی کی سیٹ وہ جو کہ بالکل وہ واک اوور ہوگا اس کے لیے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ اگر جو ہی سیٹ چھوڑتے ہیں ادھر سے وہ چند ہزاروں سینکڑوں ووٹوں سے نا ان کے بھائی جیتے تھے. ٹھیک ہے تو اس طرح وہ سیٹ تو اپنی کوئی وہ نہیں کرے گا. امپیکٹ اس کا تبھی ہوگا جب یہ پوری پی ڈی ایم وہ ریزائن دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. سر سی سی پی لاہور کی کچھ بات کر لیتے ہیں. عمر شیخ صاحب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. آپ کو سمجھتے ہیں میرٹ پر فیصلہ ہے، پاپولر اوپینین کا پریشر تھا کہ عمر شیخ صاحب کو ہٹانا ہے اور ہٹایا گیا؟ دیکھیں جب ہٹانا چاہیے تو اس وقت نہیں ہٹایا. اب جب وہ جم کے کھیل رہے تھے اور ان کے بارے میں بڑے پازیٹیو رپورٹس جن کے میڈیا میں تھیں یا ویسے بھی کسی پولیس والے سے بات کریں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے ان کی، اور کچھ آف دا بیٹ وہ ڈیسیژن لیتے ہیں اور اپنے پولیسنگ دا پولیس کے پہ بہت وہ پختہ یقین رکھتے ہیں. پولیس ریفارمز میں بہت اچھا ایکٹیو تھے. ایکٹیو. اور وہ دوسرا یعنی کہ وہ چینج لانا چاہتے تھے اپنے ہی پولیس آفیشلز کے اس میں بیہیویئر میں، کنڈکٹ میں اور ورکنگ میں. تو
शुरू में उन पे जो है सिविल सोसाइटी का था और पूरे मीडिया और पब्लिक प्रेशर, लेकिन उस वक्त वो जम के खड़े रहे कि किसी का अगर एक जाती कोई ख्याल है तो उसकी बेस पे हमें उनको नहीं हटाना चाहिए, और उनको टाइम दिया और वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अब यहाँ पे अब्रप्ट किस्म के वो फैसले होते हैं। ये एक दिन हम वो रिपोर्ट कंपाइल कर रहे थे अपने न्यूज़ रूम में कि जी डीसी लाहौर जो है जब से ये बुज़दार हुकूमत आई है तो 8-9 डीसी चेंज हो चुके हैं, आईजी चेंज इतने हो चुके हैं। इसी तरह आईजी जब कोई एक आके जम के काम करने लगता है तो उस वक्त उनको हटा दिया जाता है, और फिर परसेप्शन ये भी आता है कि जी ये फैसला बुज़दार साहब ने नहीं किया, ठीक, ये प्राइम मिनिस्टर जो है इतने बड़े फैसले कर। लग ये रहा है ऐसा कि जैसे गवर्नर सिंध साहब आए हैं, फौरन वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत की है कि कहीं जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध में खासतौर पे एमकेएम या फंक्शनल लीग है उनके साथ किसी एग्रीमेंट के करीब करीब तो नहीं पहुंच गई जो इमरजेंसी में ये फौरन मुलाकात हुई है। हाँ जी, ऐसे ही हुआ है। ये जब सेंसस को गवर्नमेंट ने ओके किया, अप्रूव किया रिजल्ट्स को 2017 की जी, तो उस पे एमकेएम ने अपना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया, पीपल्स पार्टी ने अपना माइल्ड सा रिएक्शन दिया कि हाँ जी ये जो है ना इसमें धांधली हुई है और हमारे जो है ना वो पूरे वो नहीं दिखाए गए। तो 3 दिन पहले पीपल्स पार्टी का वफद मिला है एमकेएम से, बिल्कुल ठीक है, तो उधर से कुछ बर्फ पिघली थी, वो एक मुलाकात थी। एमकेएम जो है ना वो जाहिर है अपने डिसेंडिंग नोट तो अक्सर देती रहती है, लेकिन निकलने का नाम हुकूमत से निकलने का वो सोच भी नहीं सकती, तो उनको पता नहीं कहीं से कंट्रोल किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पहले 2-3 मीटिंग्स में कैबिनेट में ये कहा कि हम इनके जो भी इशू है उसको एड्रेस करेंगे, और फिर फाइनली उन्होंने ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था कि हम किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे किसी वजीर से। तो शायद इससे फिर एमकेएम को एक जवाब मिल गया। नहीं, जवाब तो नहीं मिला। इनफैक्ट वो एमकेएम को चाह रहे थे कि वो वापस कैबिनेट में आ जाए, और वो कैबिनेट में तो वापस नहीं है। और दूसरा, जहां तक पीटीआई का एक क्या कह सकते हैं, इनकी जो रूह है वो किसी इत्तेहादी जमात के साथ चल नहीं सकती। ये सोलो फ्लाइट में बहुत अच्छा चलने के लिए वो तैयार हैं और शायद काम भी करते हैं। आपने देखा ही होगा कि उन्होंने इलेक्शन भी बिल्कुल अकेले लड़ा और किसी के साथ बात भी नहीं करते, अपोजिशन के साथ भी, और अपने इत्तेहादी एक उनको अब ये मजबूरी में रखने पड़ गए। तो इस वजह से अब सिंध में कोई इतना ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है कि उस पे कोई जो पीपल्स पार्टी है वो पैनिक हो जाए। अब इधर जो जिमनी इलेक्शन, पीर पगाड़ा साहब को जब फोन करना पड़ गया वज़ीर-ए-आज़म को, तो फिर तो कुछ है ना ऐसा मसला अंदर? नहीं, कोई पीडीए उधर पीर पगाड़ा का उनका जो जीडी अलायंस है उनकी तरफ से कोई इस तरह का उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड कोई इश्यूज होते हैं। अब ये जो अभी जिस तनाजुर में बात हो रही है वो सिंध के जो है ना बाई इलेक्शंस हैं, तो उसमें वो चाह रहे हैं कि एमकेएम और जीडीए और पीटीआई मिल के इलेक्शन लड़े, बजाय इसके कि हम पीपल्स पार्टी के वो जो है कैंडिडेट्स उनको हमारे अपने वोट तकसीम हो जाए। ये दुरानी साहब की मीटिंग्स कोई सिंबॉलिक नहीं है कि वो क्या करना चाह रही है, जीडीए क्या मैसेज देना चाह रही है? शहबाज शरीफ साहब से भी हो रही हैं, फिर एमकेएम से भी हो रही हैं। दुरानी साहब अपने आप को जीडीए से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट का प्लेयर जाहिर करते हैं, जिसकी वजह से उनको ना मीडिया में स्पेस मिल रही है। अदरवाइज जो पीर पगाड़ा साहब है वो पुराने सियासतदान है, वो खुद भी राब्ता कर सकते हैं, उनके लिए वो दुरानी साहब की जरूरत नहीं है। और ना ही दुरानी साहब का कोई पुराना ताल्लुक है उनकी पार्टी से, फंक्शनल लीग से। वो दुरानी साहब का एक अपना पुलाया है कि जी वो मीडिया को अटेंशन ज्यादा ग्रैब करने के लिए एक जमाने में वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है, तो तब से उनको मीडिया में रहने का एक चस्का है। अदरवाइज ही इज नो पार्टी। एक बड़ी बात यह है कि मोदी की जो पॉलिसी है वो बजाय रियल इश्यूज को एड्रेस करने के वो पॉपुलर डिसीजंस लेता है, जिससे वो शायद अपनी जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें ज्यादा पॉपुलर हो सके, ज्यादा बल्ले बल्ले हो सके। तो उससे यानी जो रियल इश्यूज हैं जो एड्रेस करने चाहिए वो कहीं दब गए हैं, इसलिए शायद ये कुछ नजर आ रहा है। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी पे जो है ना, अगर हम उनके कोई नेगेटिव ढूंढने लगे तो वो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ वो कारपोरेट वर्ल्ड को उन्होंने ज्यादा स्ट्रांग किया और उसकी बजाय वो सोशलिस्ट किस्म की जो उनकी सोसाइटी होनी चाहिए थी, एक वर्ल्ड लार्जेस्ट वो डेमोक्रेसी भी कहते हैं, और एक सेकुलरिज्म का उनका अपना एक उन्होंने बनाया हुआ था
वो तो अब खत्म होता जा रहा है, डिफेस्ट हो गए। हाँ, लेकिन बहरहाल फिर भी ये दुनिया की टॉप 10 जो है ना बिगेस्ट वो जो है ना इकोनॉमीज, उनमें इंडिया स्टैंड करता है, और इनका जो जीडीपी है वो श्रैंक हुआ है अब रिसेंट ईयर में, लेकिन अभी भी वो मेरे ख्याल में 6 पॉइंट उसमें आ रहा है समथिंग में, तो इनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन 10 खरब का खसारा, ये कुछ नहीं है, इंडिया की जितनी बड़ी इकोनॉमी है उसमें ये कुछ नहीं है, लेकिन सबसे इनको जो बड़ा नुकसान हो रहा है वो एज ए सोसाइटी, जो एक इंडियन सोसाइटी जिसमें बहुत सारी एथनिसिटीज हैं, बहुत बड़ा कंट्री है इंडिया, और उधर ये जिस किस्म का ये मोदी ने आके जलगार की है, इससे मैं कहता हूँ कोई जैसे वो अक्सर उधर चीखते रहते हैं ISI ने हमारे मुल्क के साथ ये कर दिया, पाकिस्तानी मिलिट्री ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने, जितनी बड़ी इंडिया को नुकसान मोदी की पॉलिसीज ने पहुंचाया है या पहुंचाने पे वो तुला हुआ है, वो पाकिस्तान क्या दुनिया की कई मिलिट्रीज भी इतना वो नहीं कर सकती थी जितना वो उसने सारी एथनिसिटीज को आपस में ला खड़ा किया है। हिंदू मेजॉरिटी वो उनकी इवन सिविल सोसाइटी को भी इसने करप्ट कर दिया, मीडिया को करप्ट कर दिया है कि मीडिया उधर का एक वाइब्रेंट होता था, किसी जमाने में आवाज उठाता था, लेकिन 1-2 लेफ्ट के न्यूज़पेपर्स के अलावा अब सारे वो मोदी के वो तर्जुमान बने होते हैं। इवन ये फार्मर्स प्रोटेस्ट है, इस पे देख लें, कश्मीर का इशू देख लें, वो स्टेटहुड का वो जो था सिटीजनशिप का जो एक्ट था उस पे देख लें, शाहीनाबाद का जो धरना था तो उसमें वो मीडिया उनको गालियां दे रहा था, तो इसने मीडिया को करप्ट किया। उधर की सिविल सोसाइटी जो बहुत वाइब्रेंट होती थी उसमें बहुत थोड़ी सी तादाद रह गई है जो मोदी को वो क्रिटिसाइज करती है, बाकी सारे उसके पीछे खड़े हो गए हैं, और सारी जो मुस्लिम जो है वो उनको अलग उसके गलत डिसीजंस को भी एंडोर्स किया जा रहा है। यानी कि उधर एक जमाना था कि जो दिल्ली है, ये जो शहर है, उधर मुस्लिम रह रहे थे ना, चाहे उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे, लेकिन इस हद तक नहीं कि अब ये जो सब्जी वाला है ये मुसलमान है और इससे सब्जी नहीं लेनी, और इस चीज को वो मीडिया प्रोवोकेट कर रहे हैं, उनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वो कर रहे हैं। तो ये मोदी जो है ना, इसने इंडिया में ऐसी गहरी दरारें डाल दी है कि ये अब इनकी बड़ी जो इकोनॉमी है ये भी नहीं बचा सकेगी, और इनका जितना बड़ा स्ट्रक्चर और इन्होंने जितना कुछ वो बनाया हुआ है, तो इसने तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। ऐसे सब बात ये कि अब क्या कश्मीरियों को ये सीख लेना चाहिए कि गुलामी में जिंदगी गुजारनी है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या फिर कुछ हो सकता है, अभी भी कोई ऑप्शंस हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, UN से उम्मीदें लगाएं कोई? देखिए, उम्मीदें तो हमें कश्मीरियों से ही लगानी चाहिए। अब कश्मीरी सर किससे लगाएं? बात तो देखेंगे, हर कश्मीरी में अपना केस आप लड़ना है, ठीक है। अब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हमने कोई बेहतर एक स्टॉक डिफरेंस दिखाए, तो एक तो है कि यूरोपियन यूनियन का एक डेलीगेशन उधर अगर जाता है ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो वो वेल गार्डेड और पुलिस उनकी सिक्योरिटी में गया, कंट्रोल्ड वो था, और कुछ एम्बेसडर्स ने कहा कि भाई हम नहीं जाते इस तरह के कंट्रोल्ड हम। अच्छा, उसके बरअक्स दुनिया का कोई डिप्लोमेट, एम्बेसडर या कोई मीडिया का बंदा हमारे कश्मीर में जाए उसको कोई नहीं रोकेगा, किसी से मिले, किसी से बात करे। उधर के इलेक्शंस हो, इधर के इलेक्शंस हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है कि उधर जिस तरह, और उधर 5 लाख 7 लाख इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, इधर सुकून है, अमन है। एक तो डिफरेंस हमने ये दिखा दिया। अब दूसरा, कुछ इंटरनेशनल फोरम्स रह जाते हैं, कश्मीरी बहुत वाइब्रेंट होते थे यूरोपीय ये जो है कैपिटल्स, यूरोपियन कैपिटल्स में, अमेरिका में शायद इतने नहीं है, यूरोप में बहुत ज्यादा है, तो उनको चाहिए कि वो उधर ज्यादा अपनी डिप्लोमेसी करें और ज्यादा उनके गवर्नमेंट को वो प्रोटेस्ट करें, कोई अपना दिखाएं। जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब ये स्टेटहुड का इशू आया, ये ऑटोनॉमी का, जब उन्होंने वो किए, रिवोक किए उनके क्लॉजेस, तो जिस किस्म का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो प्रोटेस्ट करेंगे उधर लंदन में या दूसरे